Hello student, this is another important video and the subject is sales of goods act. When we talk about the important sections of the sales of goods act, especially when we are preparing for the prelim examination, so today we are going to discuss about what are the important sections which we need to refer when we are starting to preparation for prelims. तो here are some sections जो मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी कि इनको आपको पढ़ना है फॉर प्रीलिम पर्पस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज जो आप किसी भी लॉ को पढ़ते हो एज इट ऑलवेज हैपन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लॉज. तो यहाँ पर भी सेल्स ऑफ गुड्स का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 एंड इट टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिनेशन. ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना होगा, दैट इज डेफिनेशन. इसके डेफिनेशन में आप वेरियस डेफिनेशन पढ़ते हो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द गुड्स, right, and then that is deliverable state, right, another that is delivery, etc. So there are some important definitions which are included in this section, that is section 2. After section 2 you can move towards section 4 because section 4 आपको बताता है कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है. This section is not just important for the prelim but it is also important for mains, because in this section we need to understand that what are the two important concepts when we are dealing with the delivery of goods. तो एक आपका contract होता है that talks about sale and then another about that is agreement to sale. So there are two concepts which are included in section 4 which clearly differentiate कि सेल क्या होगा और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा. सो दीज आर द टू थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 5 रहेगा बिकॉज आपको इसको भी पढ़ना होता है. अगर आप सेल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल को लेके और वो जो प्रोडक्ट है वो गुड्स है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, राइट. सो यहाँ आपको फॉर्मेलिटीज मिलेंगी. अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन आफ्टर सेक्शन 5 इज दैट इज सेक्शन 9. Section 9 talks about when we are dealing with the contract for the goods of sale. यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है whether it is important कि जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वैल्यू भी दे दो. द आंसर इज नो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड पे द कंप्लीट पेमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स. तो यू कैन पोस्टपोन. द क्वेश्चन इज अबाउट when you enter into the contract to sell a particular goods and you have not ascertained the value. So how you are going to ascertain the value of the goods, this section talks about. So basically section 9 आपको prelim में पूछा जाता है कि which section deals with ascertainments of the value of the goods. Then you can take section 10 also because वहाँ पर agreement हो रहा है, but if you want then you should similarly skip to section 10 और आप आ जाओगे section 12 पर. Section 12 talks about conditions and warranties. This is very very important topic that when we deal with the contract for the sale or agreement to sale of goods, question is about if there is any condition, whether the condition is valid, or if there is any warranty, whether this warranty is valid or not. If some person has violated any condition, what will be its effect, and suppose if the person has violated या breached any warranty, what will be its effect. So basically student, there is a difference if the purchaser or the seller is violating condition, effect difference होंगे. अगर warranty को आप breach करते हो तो effect may be different, जो कि इतने थोड़े moderate होते हैं. कंडीशन और वारंटी को लेके सेक्शन 12 आपको पढ़ना होता है. देन सम टाइम कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप कंडीशंस बनाते हो बट उस कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा. इसको लेके आप सेक्शन इसी में इन्वॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज सेक्शन 13. तो सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 शुड बी टेकन टुगेदर because first of all section 12 talks about condition warranty. It will give you some examples. It will give you that these are the warranties and these are the conditions. जबकि 13 आपको वो condition बताता है कि कब कोई condition warranty की तरह treat की जा सकती है. तो दोनों section important. And then we will move toward that is section 16. Section 16 talks about कि whenever we are talking about implied conditions and the condition is related to the quality of fitness. So generally when we talk about the implied condition, as we know that in any of the contract the condition may be expressed, the condition may be implied, but when the condition is implied and the condition is related to the fitness of good, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा. फॉर दैट पर्पस वी आर डीलिंग विद सेक्शन 16 और इस सेक्शन 16 में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ते हो, दैट इज कैविएट
एम्पुटर। और यही प्रिंसिपल आपसे हमेशा एग्जाम्पल में पूछा जाता है प्रीलिम में। आपका ये क्वेश्चन रेगुलरली एग्जामिनेशन में होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पुटर इज इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, या फिर आपसे पूछेगा द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पुटर इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपका सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कैविएट एम्पुटर का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है यहाँ पर। इसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन वी विल डील विद कि आपने सारे क्वेश्चन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप उसको एक अलग से कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें इंक्लूड करो, और वो सेक्शन है सेक्शन 26। सेक्शन 26 आपको बताता है कि जो रिस्क होता है वो प्रिमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। सपोज ए बी के साथ कुछ गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये गुड्स डिलीवर हो रही है, तो ये जो स्टेज है ये फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस पहुंचने में इफ एनी लॉस इज कॉज, एनी इंजरी इज कॉज्ड टू द गुड्स, दैट हु विल सफर द लॉस। क्या ए वो बियर करेगा लॉस या बी बियर करेगा? तो दैट इज टू बी टेकन वेरी वेरी क्लियरली दैट सेक्शन 26 सेज प्रिमा फेसाई जो होता है वो जैसे ही प्रॉपर्टी इसके तरफ पास हो गई, बिकॉज ए हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद बी कि आप मेरे से गुड्स ले लेना, एंड बी हैज टेकन द कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको इसका कंसिडरेशन दे दूंगा। माइट बी पॉसिबल कि अभी बी हैज नॉट कंप्लीटली पेड द पेमेंट, स्टिल यहाँ पर इस पर जो राइट्स है इस गुड्स पर वो बी पर पास हो गए। तो जैसे ही बी पर राइट पास हो जाते हैं इस गुड्स पर जो भी लॉस और इंजरी होगा वो बी बियर करेगा, ए बियर नहीं करेगा, और ये प्रिंसिपल सेक्शन 26 में दिया गया है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अबाउट प्रिमा फेसाई, इट्स मीन इट माइट बी पॉसिबल सम डिफरेंट एस्पेक्ट में बी देयर। तो देयर आर सम सर्कमस्टांसेस व्हेन रिस्क पासेस टू हिम, and when it passes to him these are provided under this law. And then we will move towards section 27 क्योंकि section 27 कहता है that even though you are not the owner of the goods, whether you can transfer the goods or not, the answer is yes, but to what extent? तो आप एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हो यहाँ पर। The doctrine is about कि जब आपके पास राइट होगा, यानी nemo dat quod non habet, nemo dat quod non हैबिट। और ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये प्रिंसिपल आपको इस सेक्शन में इन्वॉल्व है। द पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली द ओनर ऑफ द गुड्स बट स्टिल ही कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द गुड्स टू समवन एल्स। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल को आप एक एक्सेप्शन की तरह देख सकते हो कि दैट द पर्सन इज नॉट द ओनर बट ही कैन ट्रांसफर द गुड्स in what condition? What condition? That is to be taken into section 27. Then we will move towards section 31 because section 31 आपका एक important section है जो basically seller और buyer की duties बताता है। So if you can recall under transfer of property act, we will deal with section 55 of TPA which says whenever any property is sold to the person, buyer और seller की कुछ duties होते हैं, कुछ rights होते हैं जो कि immovable property के बारे में बात करते हैं। Now here I am talking about goods. तो अगर हम goods को ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुड्स पर जो सेलर और बायर के ड्यूटीज होंगे वो 31 में दिया गया है। और क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद ड्यूटीज ऑफ द सेलर एंड बायर। तो आप इसको पढ़ोगे। समटाइम डिलीवरी पर भी क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी कब मानी जाएगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जब रिस्क पास होता है तो रिस्क पास होने का ड्यूरेशन कब है, तो यहाँ पर डिलीवरी को भी इन्होंने डिफाइन किया है, बताया है आपको। तो आप इस सेक्शन को भी ले सकते हो डिलीवरी के लिए। बट एज आई एम टू टेक ओनली 10 इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज व्हाट आई एम जस्ट स्किपिंग फ्रॉम दिस प्रोविजन, बट यू शुड टेक इट इनटू कंसीडरेशन। Another important section is section 45 and section 46. Please remember student, these are basically those important sections which are usually preferred in the examination of prelims. In which of the following section unpaid seller is defined? तो आपको ये section पूछा जाता है। और अगर कोई unpaid seller है जो यहाँ define है, उसके rights क्या होंगे? So the provision related to the rights are provided under section 46 of the Sales of Goods Act. So you should take these two sections together. After that you should have seller's lien, part delivery, termination of delivery, but we are just skipping from these sections.
but we are just taking this section which is important, that how stoppage in transit is affected, because there sometime it may happen कि अगर A से goods को आप B को ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर इस ड्यूरेशन को कहते हैं ट्रांजिट का ड्यूरेशन, और क्या यहाँ पर A इसको स्टॉपेज कर सकता है, रोक सकता है, ऑल्दो ही हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड और प्रॉपर्टी की डिलीवरी उसने कर दिया, तो यहाँ पर स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट के राइट अनपेड सेलर के पास होते हैं। दैट इज व्हाट ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इफ द पर्सन इज अनपेड सेलर then he shall have the right to stoppage the transit. Under what condition? Then it is provided. Stoppage of transit. How? कैसे आप stoppage करोगे? This is given in the section 52 of Sales of Goods Act 1930. Then I will move toward another section, that is section 54, because section 54 deals with rescission. Suppose if you have entered into the contract of the sales of goods and the question is about lien और स्टॉपेज, तो सेल जो है जनरली रिसाइन नहीं होती बाय लीन। सपोज अगर ए बी को अपनी प्रॉपर्टी को देता है, राइट टू लीन दिया गया है, तो जस्ट राइट टू लीन दिया है, इस वजह से वो रेसिस नहीं होता। द प्रोविजन रिलेटेड टू द रेसिशन इज आल्सो गिवन अंडर एसआरए सेक्शन 27। तो रेसिशन के प्रोविजन सेक्शन 27 में दिए गए, आप यहाँ पढ़ सकते हो। जनरली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में रेसिशन अलाउ नहीं होता, सिर्फ इस बात से आप रेसिशन नहीं कर सकते कि आपके पास एक राइट आ गया है लीन का, या फिर आपके पास स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट आ गया है। इसके बाद ये सारे सेक्शंस के बाद आपका कंप्लीटली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल आई वाज टॉकिंग टू यू, एंड आई होप दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन आप इन टॉप 10 सेक्शंस को अपनी प्रिपरेशन में प्रेफर ही करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।